Yeah, good afternoon, students. So then today I'm starting topic X-ray. So yesterday already I discussed that X-rays were discovered by William Röntgen, a German physicist in November 8, 1895, right? And why it is called X-ray? Because if somebody's we want to know somebody's age, you already solved story sums in class 6, 7, 8th. So when you don't know the age of any person, then you simply write let x is the age of that person or x is the height of that person. So this kind of abbreviation you are taking. So x means you which you really don't know. So that same letter is used for this radiation because earlier the uh, type of radiation and which kind of radiation we are using that was not known. That's why it is called X-ray radiation. X-ray. So X-ray means ray means radiation here, right? And Röntgen received first Nobel Prize in Physics in 1901. So this is one of the important general knowledge you should have, that first Nobel Prize is given to was given to Röntgen for the discovery of X-ray, and he took first X-ray of her wife only, and that hand of this photograph was the first X-ray in the world, and this is the X-ray photograph of her wife. And when she saw this picture, she said that I have seen my death. मतलब उन्होंने जब देखा, then she seen this, because you can't see skeleton, right? Uh, and X-ray was the first instrument which can give this picture. Correct? Any doubt? See, cross section of typical X-ray tube. So X-ray tube, this is the X-ray tube, and in this X-ray tube a huge potential difference is there, and this X-ray tube consists of cathode and anode, and from cathode high energy electrons around 1 lakh volt, this potential difference is striking, and this some low energy electrons are scattered here, and you are receiving a X-ray. So that means you require a huge amount of potential difference to generate a X-ray. Clear है? Why you need huge amount of X-ray? ये अपन कल डिस्कस कर रहे थे. तो why you need a huge amount of X-ray? Because see, when you are moving, the main criteria, main focus is when you bombarding an electron source, and near the nucleus, and the near of nucleus atom bonding of atoms or electrons is much higher than bonding of this outermost shell. देखो outermost shell का जो bonding होगा न्यूक्लियस के साथ वो कमजोर होगा, और जितना पास होगा वो उतना ही स्ट्रांग होगा. ये तो क्लियर है आप लोग को? Yes or no? Please start your videos, because I could not see you, because I'm asking anything and you people are not answering properly, and I don't know whether you are there or not. I can't take this kind of classes, right? If you don't want to take classes, take me to classes, then we'll act accordingly as per your convenience. Otherwise, you have to cooperate with my class, right? So माइक मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जितने एटम्स हैं न्यूक्लियस के साथ में जो पास में है उसकी बॉन्डिंग ज्यादा होगी, और जितना आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी बॉन्डिंग उतना ही क्या होगा, कम होगा. ये क्लियर है आपको? यस और नो? यस सर. अब यहाँ पर देखो दो टाइप का आपका एक्सरे रेडिएशन होता है. फर्स्ट में क्या हुआ कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस किया. जैसे यहाँ पर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ से रिप्लेस किया, तो मेरे पास जो दूसरे जगह से जो इलेक्ट्रॉन है उस जगह को फिलअप करेगा. ये क्या करेगा? इसको फिलअप करेगा.
वैसे ही जैसे मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, जैसे मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालूंगा तो वहां से जो वैकेंसी क्रिएट होगी उसको फिलअप करने के लिए वहां ऊपर से नीचे आएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऊपर से नीचे आएगा और उससे आपको एक रेडिएशन मिलेगा। उससे आपको क्या मिलेगा? एक रेडिएशन मिलेगा। एक ये बहुत सिंपल और बेसिक कंसेप्ट है कि हम लोग जब भी रेडिएशन की बात करते हैं तो रेडिएशन तभी निकलेगा जब एटम अपने से ऊपर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और एक्साइटेड स्टेट में जाकर वापस जो है अपने ग्राउंड स्टेट पे वापस आएगा। देन यू विल सी अ रेडिएशन। मतलब कोई भी आपका रेडिएशन वो रेडिएटिव भी हो सकता है, नॉन रेडिएटिव भी हो सकता है। मतलब आपको लाइट भी दिख सकता है, लाइट नहीं भी दिख सकता है, कि बिकॉज एक्सरे को तो आप देख नहीं सकते, एक्सरे इज इनविजिबल, यू कांट सी फ्रॉम योर नेकेड आईज। सो एक्सरे इज टोटली इनविजिबल रे, बट यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम फोटोग्राफिक प्लेट। आप फोटोग्राफिक प्लेट लगाओगे तो फोटोग्राफिक प्लेट से आपको यहाँ पर वो दिखना चालू होगा। क्लियर है? Yes, sir. यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम क्या करते हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स यूज करते हैं। वी आर यूजिंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। और हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे कि उसमें से एक नहीं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को हटाते हुए निकल जाएंगे। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? वो हटाते हुए निकल जाएंगे। मतलब इट इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ potential difference and high energy electrons, and this is high speed and high energy electrons, it will simply bombarded with the एक मिनट रुक जाइए। वॉइस आ रही है आप लोग को? इज इट विजिबल? सॉरी टू इंटरप्शन, लाइट चली गई। तो यहाँ पर अभी आ रही है सबको आवाज? वॉइस क्लियर है? हाँ, मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ एक बार ना। मैं बोल रहा हूँ कि जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जब इस पे अप्लाई होंगे तो वो क्या करेगा, एक साथ कई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जगह से मूव कर देगा। एक साथ क्या करेगा वो, एक नहीं कई सारे इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर देगा। यहाँ से चला गया, यहाँ से चला गया, यहाँ से चला गया। तो क्या होगा, एक साथ जैसे हम बोलते हैं ना कि हवा क्यों चलती है, वाई विंड ब्लोस, कोई बता सकता है? हवा क्यों चलती है बताओ, वाई विंड ब्लोस? एक सिंपल रीजन है, क्लास 6-7 का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। व्हाई विंड ब्लोज? लोपामुद्रा जी बताएंगे? विल यू ट्राई? हवा जब बहती है तो वो ब्लो करने लगती है। नहीं तो बहती क्यों है? व्हाट इज दिस इज माय क्वेश्चन। देखो जब भी कोई टेम्परेचर डिफरेंस होगा, ना, कोई टेम्परेचर डिफरेंस हाँ होगा। हाँ सर, हाँ सर, हाँ वो लोअर हाँ, से हायर 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 एनर्जी से से लोअर, लोअर एनर्जी को हायर जब से मूव लोअर, करती है। वेरी गुड। मतलब हायर से, गर्म जगह से ठंडी जगह से हवा गर्म जगह को वेरी गुड, बहती ठंडी से गर्म जगह है। की ओर बहेगी। जैसे अभी धूप पड़ रहा है तो वहां पर जो हवा है ना, गर्म होकर ऊपर उड़ गया। पानी भी गर्म होता तो उसमें से भाप कहाँ जाता है? ऊपर जाता है ना। तो वो जो एम्प्टी स्पेस क्रिएट होता है उसको फिलअप करने के लिए हाँ दूसरी सर। जगह से हवा आएगा। ये तो क्लियर है सभी को? तो लोपामुद्रा ने बिल्कुल ठीक बोला कि जो ठंडी जगह से हवा गर्म जगह पे आएगा। ठीक है, किसी का माइक बहुत डिस्टरबेंस कर रहा है, प्लीज म्यूट कर दो उसको। हाँ, माइक माइक म्यूट करना, वीडियो नहीं करना है, ठीक है। सो यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव कर जाएंगे, राइट। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहाँ से मूव करेंगे। तो यहाँ से कंटिन्यूअस एक जो ऊपर का इलेक्ट्रॉन है वो नीचे आएगा, है ना। सभी जगह से एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उस स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए वहां से मूव करना स्टार्ट करेगा। ये क्लियर है? देखो एक
ये क्लास को अपन थोड़ा जल्दी शेड्यूल कर सकते हैं क्या? 9:15 10 बजे ऐसे? यस सर। क्योंकि ये जो 12 बजे का टाइम है ना, इसमें ये नेटवर्क का बहुत इश्यू रहता है और ये लाइट का भी थोड़ा समस्या है यहाँ पे। ओके, ये स्क्रीन इज विजिबल? जी सर। यस सर। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ, देखो मेन चीज क्या है कि हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर बम्बार्ड करते हैं किसी मेटल पे। कोई भी एक टारगेट होगा, उस टारगेट पे हम क्या करेंगे, बम्बार्ड करेंगे, ठीक है? और वो जो टारगेट है उससे आपको क्या मिल रहा है, एक्सरेज मिल रहा है। ये क्लियर हुआ? एक्सरे प्रोडक्शन के लिए आप कोई भी एक टारगेट लोगे, है ना? यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है क्रोमियम, दिख रहा है आपको स्क्रीन? क्रोमियम, आयरन, ये दिख रहा है आपको? इज इट मूविंग? ये क्रोमियम, आयरन दिख रहा है आपको? इज इट विजिबल? प्लीज से यस और नो। दिख रहा है आपको? यस सर। ये दिख रहा है आपको? क्रोमियम, आयरन, कॉपर, यस सर। ये सभी टारगेट्स हैं। हम लोग इसका टारगेट, ये टारगेट जो है ना, हम लोग यूज करेंगे, ठीक है? और इसी टारगेट से हमको क्या मिलेगा इसमें? इसी टारगेट से हमको एक्सरे जनरेशन होगा। क्या होगा इसमें? एक्सरे जनरेशन, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, जब क्रोमियम यूज करेंगे तो इसका जो रेडिएशन है वो 2.28 ये मिलेगा आपको। किसका है? एक चेक कर लूं, कौन कपड़ा धो रहा है? 1 मिनट प्लीज 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 प्लीज। गिरजा, आपके यहाँ का है क्या आवाज? यस यस, गर्भ गिरजा का ही है, हाँ ठीक, ओके, राइट राइट। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो टारगेट प्लेट होगा ना, उस टारगेट प्लेट पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, है ना? उस टारगेट प्लेट से ही हमको समझ में आएगा कि हमारा जो आउटपुट जो रेडिएशन है वो क्या होगा, आउटपुट हमको क्या मिलेगा, वो किससे डिसाइड होगा? किससे डिसाइड होगा? टारगेट जो यूज कर रहे हैं हम लोग। तो टारगेट यहाँ पर अलग अलग टारगेट यूज हो रहा है आपका। कहीं पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, क्रोमियम यूज कर रहे हैं, आयरन यूज कर रहे हैं, कॉपर यूज कर रहे हैं, मोलिब्डेनम यूज कर रहे हैं, ठीक है? अब देखो, नॉर्मली हम लोग जो यूज करते हैं वो कौन सा होता है? वो कॉपर यूज करते हैं हम लोग। नॉर्मल क्या यूज करते हैं? जो कॉमन, बहुत ही कॉमन जो है वो क्या है? कॉपर है, क्लियर? और कॉपर का के अल्फा, ये जो के अल्फा है, ये जो के अल्फा जो एंगस्ट्रॉम में है 1.54, ये वाला जो है लैम्डा, इसको हम लोग यूज करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। कौन सा यूज करते हैं हम लोग? कॉपर के अल्फा। प्लीज राइट डाउन दिस पॉइंट कि हम लोग कौन सा यूज करते हैं, एक्सरे जो यूज करते हैं, कॉपर के अल्फा रेडिएशन यूज करते हैं, विच इज 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है? तो एक्सरे जनरेशन के लिए टारगेट चाहिए, उस टारगेट पे हम लोग क्या करते हैं, उस टारगेट पे हम लोग क्या करते हैं, उसमें मैक्सिमम जो पोटेंशियल जो डिफरेंस है उसको उसमें इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है? और उस पोटेंशियल डिफरेंस से आपको इस तरीके से अलग अलग जो वेवलेंथ मिलती है, उसको के अल्फा 1 के अल्फा 2, उसका दोनों का एवरेज, तो दोनों का एवरेज कितना होता है? 1.54। तो ये के अल्फा, के बीटा, ये सब जो अलग अलग आपको मिलेगा वो इसके थ्रू आपको यहाँ पर मिलना स्टार्ट होगा, क्लियर है? तो एक्सरे कैसे जनरेट होते हैं, क्लियर है आपको? एक्सरे कैसे जनरेट होता है? तो एक्सरे के लिए हम लोग कोई भी मेटल का टारगेट लेंगे, उस पर अपन हाई एनर्जी, हाई पोटेंशियल डिफरेंस, हाई वोल्टेज को अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करेंगे तो उससे एक्सरे जनरेशन स्टार्ट होगा, क्लियर? हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पर हम अब बात करेंगे कि एक्सरे का जो डिफ्रैक्शन है, हेडिंग देना, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज। एक्सरेज में क्या होगा? डिफ्रैक्शन होता है। एक्सरे में क्या होता है? डिफ्रैक्शन होता है। अब डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन मींस बेंडिंग ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन मींस बेंडिंग ऑफ लाइट।
लाइट जो है वो यहाँ से मूव करना स्टार्ट हुआ, और सपोज ये लाइट ऐसा मूव किया और यहाँ पर कोई शार्प एज हुआ, उससे वो टकराकर मुड़ गया। टकराकर क्या हो गया? मुड़ गया। तो बेंडिंग ऑफ लाइट, सो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज डिफ्रैक्शन। क्लियर? यस सर। हिंदी में, हिंदी में सिंपल बोलूं तो प्रकाश का मुड़ना, प्रकाश का मुड़ना, इसको बोलते हैं हम लोग विवर्तन। डिफ्रैक्शन जो है किसी भी लाइट रे का किसी भी शार्प एजेस से जो बेंड होगा उसको हम लोग बोलेंगे डिफ्रैक्शन। क्लियर? तो ये जो डिफ्रैक्शन है वो यूज होता है किसमें? एक्सरेज में। एक्सरेज में ये डिफ्रैक्शन का जो पावर है, डिफ्रैक्शन का जो टेंडेंसी, वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है? अब आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि जो क्रिस्टल होता है, वो जो भी क्रिस्टल है, नमक है, शक्कर का जो ढेला है, उसमें एटम्स जो है ना लेयर्स के फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं? लेयर्स के फॉर्म में। ठीक है? और इसमें आपके जो एटम्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से रंगोली जैसा बनाते हैं ना अपन, रंगोली जैसा बिल्कुल एक एक जगह पर बैठे रहते हैं। ठीक? तो जैसे इसमें एक्सरे इंसिडेंट होगा तो ये क्या करता है कि इस पॉइंट से, इस एटम से टकरा कर वो दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है? जो कि डिफ्रैक्शन को शो करेगा। जो क्या शो करेगा? डिफ्रैक्शन को। ठीक है? क्लियर कर पा रहा हूं आपको? यस सर। लाइट, लाइट जब मुड़ेगा, ठीक है, तो ये लाइट जो है ये किसी एटम से टकराकर मुड़ जाएगा। तो इंसिडेंट होगा यहाँ से, ये इंसिडेंट रे है, और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। ये डायग्राम थोड़ा बना लो आप लोग, ये वाला, ये डायग्राम बना लो। एक छोटा सा डेरिवेशन है, उसको मैं इसी में क्लियर कर रहा हूँ। देखो यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कंसिस्ट ऑफ रेगुलर एरेज ऑफ एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स विथ इंटरएटॉमिक स्पेसिंग ऑन द ऑर्डर ऑफ 100 पिकोमीटर और 1 एंगस्ट्रॉम। तो ये एक बहुत ही क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है ना। और दूसरा क्या? वेवलेंथ ऑफ, अब क्या कोई भी लाइट से टकरा कर वो मुड़ जाएगा क्या? कोई भी लाइट से नहीं होगा। जब आपका एटम का जो रेंज है, एटम का जो एटम का साइज कितना होता है चितेश्वरी? एटम का साइज? चितेश्वरी सुन पा रहे हो मुझे? जी सर। हाँ, कितना होता है एटम का साइज? जैसे आपका हाइट आपको पता है ना, कितने हाइट के हो आप, तो एटम का साइज कितना होता है? किस रेंज में होगा? माइक्रोमीटर में होगा, नैनोमीटर में होगा? एटम, एटम इज इनडिविजिबल, इनडिविजिबल पार्टिकल है वो। उसको मिक्सी में पूरा पीस दोगे, बारीक बारीक बारीक, सबसे पतला, सबसे छोटा, सबसे बारीक, सबसे बारीक, उससे उससे और छोटा नहीं हो सकता। नैनो, नैनो अगर रेंज होता तो नैनो तो पार्टिकल ही नहीं होता फिर तो। नहीं समझी? देखो नैनो पार्टिकल बनाते हैं ना हम लोग, तो नैनो पार्टिकल का भी तो एक एटम होता है, पीको। पीको। हाँ पीको चलेगा, ठीक है। हाँ, तो आपका फेम्टोमीटर, फेम्टो 10 टू द पावर -15, 10 टू द पावर -15 न्यूक्लियस का रेडियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस का रेडियस 10 टू द पावर -15 मीटर का। और आप उसको पिकोमीटर से नैनो फेम्टोमीटर तक एज्यूम कर सकते हो। तो उस रेंज का, उस रेंज का जब आपका लाइट उस पर इंसिडेंट होगा, उस पार्टिकल का साइज के बराबर जब लाइट इंसिडेंट होगा, तब वो उसको डिफ्रैक्ट करेगा। तब वो क्या करेगा? उसको डिफ्रैक्ट करेगा। क्लियर है? मतलब डिफ्रैक्शन भी ऐसा नहीं कि कभी भी मुंह उठा के नहीं होगा ना। उसके लिए भी आपको चाहिए कि उसका जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ कितना है और किस साइज पे
वो टकराएगा, ये सब उस पे आपका डिपेंड करेगा। क्लियर है? तो यहां पर हम बोल रहे हैं कि द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट हैज टू बी ऑन द सेम ऑर्डर एज द स्पेसिंग ऑफ एटम। एटम के बीच का जो स्पेसिंग है उस ऑर्डर का जब वेवलेंथ उस पे टकराएगा, देन ओनली यू विल ऑब्जर्व द डिफ्रैक्शन, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तभी आपको डिफ्रैक्शन की घटना आपको मिलेगी, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। क्लियर? अब एक्सरे का वेवलेंथ कितना है? मोबाइल रखो ना, गूगल करो फटाक से, कितना है? व्हाट इज द एक्सरे? उससे पूछो, सीरी से या गूगल से पूछो, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, देन यू विल सिंपली गेट द आंसर। जल्दी से बताओ, व्हाट इज द एक्सरे वेवलेंथ? यस, मोबाइल 0.01 to 10 nanometer. ठीक है, वेरी गुड। तो आपका नैनोमीटर, इफ नैनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एंगस्ट्रॉम, देन हाउ मच? नैनोमीटर इज 10 to the power minus 9 and angstrom is 10 to the power minus 10. Then how much the value? 0.5 to 2.5 Armstrong. डिवाइड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। हाँ, डेफिनेटली 10 to the power minus 9 meter again. Yes, your mic is mute please. Visible light का सर? नहीं, विजिबल नहीं, नैनोमीटर। नैनोमीटर आपने बोला ना कि एक्सरे का वेवलेंथ 0.01 नैनोमीटर। हाँ सर। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ नैनोमीटर को कन्वर्ट करो एंगस्ट्रॉम में। हाँ, कितना आएगा? 0.5। 5 कैसे होगा? 0.5 में 5 कैसे होगा? अब डिवाइड 2 से डिवाइड थोड़ा करना है। इफ यू आर डिवाइडिंग बाय 2 ओनली यू विल गेट 5। It is 0.01 nanometer you told me, right? Which is 10 to the power minus 9 meter. Nanometer means 10 to the power minus 9 meter. Is it okay? जी सर। And minus 9 को क्या करना है? आपको किस में कन्वर्ट करना है? माइनस 10 में कन्वर्ट करना है। तो माइनस 10 में करने के लिए आप 10 का मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ऐसे करोगे ना। यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10 एंड डिवाइड बाय 10, देन यू विल गेट आंसर बाय एंगस्ट्रॉम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट इज अ कन्वर्जन फ्रॉम नैनोमीटर टू एंगस्ट्रॉम। तो उसमें आप क्या करोगे, एक जो डिजिट जो आपको ऐड करना है दैट विल बी मल्टीप्लाइड एंड सब्सिक्वेंटली डिवाइड। क्लियर? प्लीज डू दिस एक्सरसाइज एंड यू विल हैव पॉइंट। मेरे ख्याल से 0.01 है तो 0.1 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ललिता अनम्यूट। जी बोलिए। सर नहीं कर रही हो? नहीं की हूँ। करो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। What about Aishwarya, Lipsa? Are you following? Are we on the same page? हैं आप लोग? 10 to the power minus 5 and 0.1. 0.1 मेरे ख्याल से सही है। छोटा सा कन्वर्जन थोड़ा सा प्रैक्टिस करो ना, कन्वर्जन इज वेरी एसेंशियल और उसको सीखना ही है अपन को। ठीक है, तो WH एंड WL ब्रैग दो लोग थे, WH ब्रैग एंड WL ब्रैग। So he determined crystal structure of NaCl, KCl, ZnS and CaF2 and CaCO3 and diamond. तो उसने इस एक्सरे का यूज किया। How he used?
reflection of X-rays only occurs when the condition of constructive interference fulfilled. Constructing मतलब व्यतिकरण पढ़ते हैं ना अपन, इंटरफेरेंस, तो इंटरफेरेंस में 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, तो n लैम्डा ये वाला कंडीशन देखो, सी दिस इज वन रे, थोड़ा ध्यान देना है सभी आप लोग, दिस इज वन रे एंड ये एक एक्सरे है ना, एक एक्सरे, कैन यू सी दिस पॉइंटर, ये एक एक्सरे का रे है और ये एक एक्सरे का रे है, ठीक है, दोनों अलग अलग लेयर में, एक इस पॉइंट पे टकराया और एक इस पॉइंट पे टकराया, क्लियर, ठीक, इस डायग्राम को, इस डायग्राम को बनाए आप लोग, हाँ सर। ठीक है, तो देखो मैं बोल रहा हूं कि ये जो बीच का जो गैप है, ये दोनों को मिलाऊंगा तो ये जुड़ेगा यहाँ पे AC, ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो गैप देखूंगा तो क्या होगा, वो AB होगा, ठीक है, और इसको भी मैं एक्सटेंड करूंगा या परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये भी ऐसा कुछ होगा, AD। सो व्हाट इज माय पाथ डिफरेंस, मतलब मेरे पास ये एक रे है और ये एक रे है, इन दोनों रे में पाथ डिफरेंस कितना होगा, पाथ डिफरेंस होगा BC प्लस CD, ये इतना पाथ डिफरेंस है मेरा, इतना, ठीक है, दिस इज माय पाथ डिफरेंस, और ये जो AC है दैट इज D, ये D क्या है इसका, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, मेरे पास एक प्लेन, एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है आपका D, ठीक, ये D है, इन दोनों के बीच का गैप कितना D है, तो अगर मैं सिंपल रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यूज करूं तो मेरे पास ये एंगल है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये मेरा मिड पॉइंट है दोनों का, तो इसमें इसको मैं बेस मानता हूं, तो साइन थीटा कितना होगा इसमें, साइन थीटा अगर मैं इसमें निकालूं, साइन थीटा BC by AC, साइन थीटा होता कितना है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है इसमें, परपेंडिकुलर BC है, जी सर, परपेंडिकुलर BC पक्का कंफर्म, लॉक कर दे, यस सर, जी तो सर, परपेंडिकुलर BC और हाइपोटेन्यूज कितना होगा, हाइपोटेन्यूज AC होगा, AC होगा, ठीक है, तो BC बाई AC, ठीक है, तो आपका यहाँ पर साइन थीटा आपका BC बाई AC आएगा, चाहे ये ट्राइंगल ले लो चाहे ये ट्राइंगल ले लो, ये ट्राइंगल लेंगे तो कितना आएगा, BC के बदले CD आ जाएगा, BC के बदले CD आ जाएगा, क्लियर है, जी सर, यस सर। एक मिनट में फिर से इसको आपको ब्लैंक स्क्रीन ले रहा हूँ, देखो मेरे पास एक साइन थीटा मैंने निकाला जो कि वैल्यू है आपका कितना आया था, BC बाई AC, ऐसी, और दूसरा साइन थीटा निकाला मैं, अब यहाँ से मैं BC की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो BC कितना होगा आपका, BC कितना होगा, AC इंटू मल्टीप्लाई में साइन थीटा आएगा, ये दिख रहा है सभी को, नो सर, जी सर। यस सर, ठीक है, ये एक चीज हो गई, और दूसरा मैं बोल रहा हूँ कि दूसरा ट्राइंगल लूंगा मैं, दूसरा ट्राइंगल लूंगा तो साइन थीटा, फिर से मैं साइन थीटा निकालूंगा, साइन थीटा कितना आएगा, BC की जगह क्या आ जाएगा, बोलो क्या, AC तो रहेगा ही, AC तो नीचे रहेगा ही, यहाँ पे AC आ गया, ये नीचे आ गया, ऊपर क्या आएगा, CD। CD, ठीक है,
तो CD हो गया, तो यहाँ पे CD कितना निकल जाएगा? CD इज इक्वल टू AC साइन, multiple sin theta. हाँ मल्टीपल साइन थीटा, है ना? तो AC इज मल्टीपल ऑफ साइन थीटा। अच्छा, मैं बोला कि ये जो AC है, तो AC क्या है? ये AC क्या है? ये मेरे पास दो लेयर हैं, 1 और 2, और इन दोनों के जो बीच का जो तो जो डिस्टेंस होगा डिस्टेंस है, वेरी गुड, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये आपका क्या है? D है। ये क्या है आपका? D। डी। तो ये कितना हो जाएगा? BC कितना हो जाएगा उस केस में? मतलब हाँ, BC इज इक्वल टू यहाँ पे D BC इज इक्वल टू डी साइन थीटा। वेरी गुड, या DC आपका कितना हो जाएगा? D साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और CD कितना होगा? D, ये भी D होगा, इज इक्वल टू डी साइन थीटा। ठीक है। ये सभी क्लियर है? बताओ, ऐश्वर्या, लिप्सा, लोपमुद्रा, Yes, sir. अच्छे से sir. क्लियर है? हाँ, तो then your path difference will be पाथ डिफरेंस आप लिखे ना, पाथ डिफरेंस मतलब दो पाथ का डिफरेंस, एक रे अलग गया, एक रे अलग गया, तो पाथ डिफरेंस वाज which how much BC plus CD। CD, राइट? तो पाथ डिफरेंस, ये आपका जो पाथ डिफरेंस है इज फाइनली D sin थीटा, राइट, प्लस प्लस D sin थीटा, ये होगा। यस सर। तो दोनों तो एक ही है ना, दोनों ऐड हो जाएंगे, जी सर, 2D साइन थीटा। 2D sin थीटा, वेरी गुड। ये आ जाएगा मेरे पास, टोटल आ जाएगा 2, हाँ 2D sin थीटा। ठीक, क्लियर? किसी कोई डाउट है तो बताओ। Yes, sir. श्योर? you can take this screenshot for your reference, right? तो हम लोग कहाँ थे? यहाँ पे थे, yes, yeah. So this becomes 2D sin theta. It is okay? जी सर। यहाँ पे ये देखो Yes, डायरेक्ट आ sir. गया ना, 2D sin थीटा जो है ना, डायरेक्ट आ गया यहाँ पे, तो ये डायरेक्ट नहीं आया, वो डायरेक्ट अपन जो निकाले वहां से आया, ठीक। नाउ दिस इज द पाथ डिफरेंस, दिस इज द पाथ डिफरेंस, मींस ये एक पाथ है, ठीक है, और ये कटक है, भुवनेश्वर है, दोनों का पाथ का डिफरेंस होगा ना कुछ, राइट? तो ये जो पाथ डिफरेंस है दैट इज BC प्लस CD, दिस मच is the difference of path, and you have calculated this path as 2D sin theta, right? Now HKL Miller indices, don't confuse in HKL is Miller indices, so you would simply write 2D sin theta, not HKL, right? So condition of interference is when this path difference is equal to इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो पाथ डिफरेंस है वो जब लैम्डा, ये n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, लैम्डा इन दोनों के कंपैरिजन में आएगा, कंपेरेबल होगा, बराबर, गैप नहीं होगा, कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, देन ओनली यू विल गेट द डिफ्रैक्शन, राइट, पैटर्न, अदरवाइज यू विल नॉट गेट। जब लैम्डा 2D sin थीटा के लगभग बराबर होगा तभी आपको डिफ्रैक्शन मिलेगा, क्लियर है? जी। और इस इक्वेशन को हम लोग ब्रैग इक्वेशन बोलते हैं, विच इज द मोस्ट फंडामेंटल इक्वेशन इन एनी काइंड ऑफ डिफ्रैक्शन। अब ये केमिस्ट्री वाले भी पढ़ते हैं बहुत बार,
फिजिक्स वाले पढ़ते हैं कई बार और ये हर ब्रांच वाला पढ़ता है कई बार कि whenever instruments comes into the picture then you have to use this equation which is known as Bragg equation. Clear? Clear है जी? Yes, sir. ठीक है, तो ये ब्रैग इक्वेशन तब करके मुझे थोड़ा सा नोट सेंड करो अपने ग्रुप में, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट लेवल, राइट? Yes, sir. करना है इसका ब्रैग इक्वेशन का। हाँ, ब्रैग इक्वेशन का पूरा आपको कंप्लीट करना है। 1 मिनट, आई एम टेकिंग जी योर सर।